Good morning, friends. Today is your first lecture on the subject refrigeration and air conditioning. Uh, this is your syllabus part where you have to study about the refrigerant and refrigeration cycle. First topic is the basic or say brief history and need of refrigeration and air conditioning. Then after method of producing cooling, then what is the term of refrigeration, then COP or say coefficient of performance, then the types and application of refrigeration and air conditioning system, then recapitulation of desirable properties of refrigerant, then after secondary refrigerant, and last one is the future industrial refrigerant. Okay, so the history of refrigeration is broadly classified into two categories. First one is the age of natural refrigerant, and second one is the age of artificial refrigerant. The age of natural refrigerant was started from the beginning of 19th century, where the ice or means ice were lifted from one place and just transport to the other place for their uses. At that time, they are completely depends on the environment or the climate of that particular place. And if we require the ice, or so at that time we have to just transport this ice from the uh, means we are getting ice from the particular that areas where this ice are found. Okay. But in the artificial refrigeration, means after the 19th century onwards, the ice are formed by different scientists by using different refrigerants, and these refrigerants are classified either it will be a primary refrigerant or the secondary refrigerants, which we have to discuss in further slides. Okay. Natural refrigerant. The natural refrigerant means use of natural ice that can be transported from the colder region, harvested in winter and stored for summer. And this will produce by non-nocturnal nocturnal cooling. And what is the nocturnal cooling? Means the utilization of this ice, means uh, harvesting of this ice at the night time, which we have to discuss in further slide. Then after use of evaporative cooling, the best or practical example of evaporative cooling is your pot, मीन्स मटका के अंदर घड़े के अंदर जो कूल वाटर हमें मिलता है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर इवेपोरेटिव कूलिंग. देन आफ्टर कूलिंग बाय सॉल्ट सॉल्यूशन. So salt is a good source to absorb heat, but it can be little or say means the recovery of salt at that time is much more difficult. ठीक है, या इसके लिए आपको एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दिलवा सकता हूँ. एक सॉल्यूशन होता है ब्राइन सॉल्यूशन. मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि अगर मैंने एक गिलास वाटर लिया, मीन्स 2 गिलास वाटर लेना है. एक गिलास वाटर प्लेन वाटर है जो आप पीते हैं, और एक गिलास वाटर है जिसमें आपने मतलब 7 या 8 चम्मच नमक के मिला के उसको मतलब अच्छे से मिक्स कर देना है. फिर ये दोनों ग्लासेस को आप फ्रीजर के अंदर डाल दीजिए. देन आफ्टर अराउंड 8 to 10 आवर्स आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो प्लेन वाटर था, जो पीने वाला पानी पोटेबल वाटर वाला जो ग्लास था, वो जो है वो बर्फ का, उसमें बर्फ का फॉर्मेशन होने लग गया, या बर्फ कम्प्लीटली बन चुका होगा. लेकिन एट द सेम टाइम जो आपका नमक वाला पानी था वो स्टिल अभी तक लिक्विड स्टेज में है.
मतलब उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट को अब्सॉर्ब कर लेगी और वो कंटिन्यूसली उस हीट को मेंटेन करके रख सकती है। ठीक है, चलिए ये देखिए नॉक्टर्नल कूलिंग का मतलब क्या हुआ। तो नॉक्टर्नल कूलिंग में क्या होता है, तो बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो ठंडा हो जाता है। तो ठंडा हो जाने के बाद क्या होगा, मतलब ऊपर की जो चादर वाले पार्ट है, मतलब अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं कि जैसे कुछ जनरली आपने देखा होगा कि कुछ हाउस जो है वो पत्थरों के बने होते हैं, मतलब स्टील का पतरा रहता है जिससे उसके ऊपर का छत बना हुआ रहता है। तो क्या हुआ, अब रात में जो ओस गिरती है और ये ओस के ऊपर में जब ठंडक हवा जाती है, तो ये ठंडक की वजह से क्या हो गया, ये जो पतरा है, ठीक है, ये कूल हो जाता है। अब एट दैट टाइम अगर हम ऊपर में एक छोटा सा फैन का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो ये फैन क्या करेगा, तो चारों तरफ कूलिंग एयर, तब ठंडी हवा पहुंचाएगा। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड नॉक्टर्नल कूलिंग। क्लियर है। चलिए इवापोरेटिव कूलिंग का एग्जांपल आपकी खुद की बॉडी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और दूसरा आपका वो मटका है। मतलब क्या होता है कि जैसे वो स्वेट करता है, एयर का फ्लो होता है, एयर के फ्लो होने की वजह से आपकी बॉडी के ऊपर एक लेयर बन जाती है। मतलब एयर जब स्ट्राइक करता है पानी से, तो वो क्या करेगा, उसको इवापोरेट कर देगा, और इवापोरेट होने के टाइम पे आपकी बॉडी की हीट जो है वो बाहर निकलेगी, और एक ठंडक का मतलब एक क्या बोलूं, जस्ट एक सेकंड ना। आपको मैं समझाता हूँ, ये देखो, अगर मैंने ये एक पॉट कंसिडर किया, ठीक है, तो पॉट क्या करता है, तो बहुत ही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में वाटर को रिलीज करता है। ठीक है, तो ये जो वाटर रिलीज होता है ना, तो इस अब यहाँ से जो एयर आई, ये एयर क्या करती है, तो ये वाटर को इवोपरेट कर देती है। तो इवोपरेट होने की वजह से इस मतलब इस ये जो हमारा जो पॉट है, इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है, जिसका टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता है। मतलब बहुत कम, मतलब कितना हुआ, तो अराउंड 10 से 15 डिग्री हो जाता है। तो जब यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री है और आपके बॉटल का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री है, तो क्या होगा, हीट यहाँ से यहाँ की ओर फ्लो होने लग जाएगी। अब तब तक फॉर्मेशन, मतलब हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा जब तक पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री ना हो जाए। तो जैसे ही 10 डिग्री हो जाएगा, तब हीट का ट्रांसफॉर्मेशन बंद हो जाएगा, अल्टीमेटली आपको ठंडा पानी मिलता है। इसी तरीके से जैसे आपकी बॉडी स्वेट करना चालू करती है, जैसे एक एग्जाम्पल लो कि आपको, ठीक है, और आपकी बॉडी स्वेट की, तो जब स्वेट करती है तो एयर फ्लो की वजह से क्या होगा, ये स्वेट जो है वो इवोपरेट हो जाएगा, और एक कूलिंग लेयर आपकी बॉडी के ऊपर में चल जाएगा, जो हीट को आपकी बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। इसे ही बोलते हैं इवोपरेटिव कूलिंग। ओके, देन आफ्टर आता है कूलिंग बाय सॉल्ट। मैंने जो आपको पहले बताया था कि 2 गिलास लीजिए, एक गिलास में फ्रेश वाटर होना चाहिए, एक में होना चाहिए फ्रेश वाटर प्लस सॉल्ट, और फिर दोनों को आप फ्रीजर में डालिए, तो आपको ऑब्जर्व करेंगे कि जिसमें फ्रेश वाटर है वो, मतलब उसमें आइस का फॉर्मेशन होने लग जाता है। लेकिन जिसमें फ्रेश वाटर नहीं है, मतलब सॉल्ट मिला हुआ है, वो लॉन्ग टाइम तक एज इट इज अपने फेस मेंटेन करते रहते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपने जनरली जो बर्फ वाला होता है उससे भी देखा होगा, बर्फ वाला कुल्फी वाला। क्यों? क्योंकि उनके पास जो एक बड़ा सा कंटेनर होता है, इस कंटेनर के अंदर में वो क्या करते हैं, तो आइस को डाल के रखते हैं। तो आइस प्लस सॉल्ट अगर रहता है, मतलब सॉल्ट डाल के रखते हैं, तो ये आइस प्लस सॉल्ट क्या करता है, तो आइस को एज इट इज उसी के फॉर्मेशन में ही बने रहने देता है। वो क्या करता है, तो हीट लॉस होने नहीं देता है। इसलिए बोला जाता है कि कूलिंग बाय सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, अब लिमिटेशन ऑफ नेचुरल मेथड, क्या क्या लिमिटेशन है, तो डिपेंडिंग ऑन द लोकल कंडीशन, मीन्स अगर आप जस्ट एक इमेजिन करिए कि आप डेजर्ट एरिया में हैं और आपको आइस चाहिए, तो आप डेजर्ट एरिया में आइस लेने के लिए अगर ट्रांसपोर्ट कराते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगा,
और अगर नेचर पे डिपेंड करते हैं तो मे बी कि आपकी रिक्वायरमेंट कम्प्लीटली फुलफिल नहीं होती। दूसरा अनसर्टेनली ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन वेदर। मैं आपको पहले बताया कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है नाइट टाइम, मान लो अगर आपने नाइट टाइम में बोला कि भाई मैं कुछ क्वांटिटी में हीट जो है वो रिलीज करके वाटर को ठंडा करके रख लूँ स्टोर करके, तो ये मे बी डिपेंड करता है उसके वेदर पे। डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। लिमिटेड सोर्स मतलब सिस्टम की इफिशिएंसी अच्छी नहीं होने की वजह से आप लार्ज अमाउंट में रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एंड लास्टली नॉट अवेलेबल टू एवरीवन, मतलब सबके लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। देन आफ्टर आता है आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन। तो इन 1755 the Scottish professor William Cullen produced a small quantity of ice by evaporating ethyl ether under vacuum, ठीक है। मतलब 1755 में प्रोफेसर विलियम ने क्या किया, तो इथाइल ईथर का यूज किया वैक्यूम में और उससे आइस का फॉर्मेशन किया। और इस समय कौन सा प्रिंसिपल उसने यूज किया था, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट। लार्ज क्वांटिटी कौन से, तो जो लेटेंट हीट है। व्हेन अ लिक्विड बॉयल एट लो टेम्परेचर अंडर द कंडीशन ऑफ वैक्यूम, ये आपको याद रखना है। चलिए इसी के बाद 1805 में वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बना। मीन्स 1805 में अमेरिकन इंजीनियर ओलिवर इवॉन डिस्क्राइब अ क्लोज साइकिल फॉर प्रोड्यूसिंग रेफ्रिजरेशन इन कंटिन्यूअस। मतलब वीसीएस सिस्टम यूज करने की वजह से क्या हुआ, हम एक क्लोज सिस्टम बना पाए। और वो क्लोज सिस्टम का बेनिफिट क्या हुआ कि हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कंटिन्यूअस मैनर में मिल गया, जिसको और अच्छा किया 1835 में जैकोब पर्किंग ने that pattern and built the system described by Oliver Ewan using ethyl ether as a refrigerant in London। ये देखिए इसका उसका डायग्राम है। इन लोग क्या किया कि ये कंप्लीट एक सेटअप बनाया और इसका पैटर्न भी फाइल किया, जिसके बेसिस पे आपको कंटिन्यूसली जो है वो कूलिंग इफेक्ट मिलने लग गया। उसी के बाद 1801 से 84 में एक अमेरिकन इंजीनियर अलेक्जेंडर ने फिर से पैटर्न फाइल किया, रिसीव अ ब्रिटिश पैटर्न इन 1850 फॉर अ वेपर कंप्रेसिंग सिस्टम बाय यूजिंग ईथर NH3 एंड CO2। James Harrison obtained a patent in 1856 from the vapor compression cycle using ether, alcohol, or ammonia. Charles Taylor of France patent in 1864 a refrigeration system using dimethyl ether। ठीक है, मतलब ये पुराने ऐसे ऐसे जॉब्स थे जो मतलब 1818 नहीं, मेरे ख्याल से इससे पहले 1755 से स्टार्ट हुआ, जो कंटिन्यूअसली चला आता अभी भी आता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आया डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर मतलब क्या हुआ, तो नेचुरल आइस बेस्ड डोमेस्टिक आइस बॉक्स इज invented in 1803 and used for more than a century। मतलब क्या किया जाता था, पहले एक क्लोज इंसुलेटेड बॉक्स बनाया जाता था जिसमें आइस रख के उसको उसकी एप्लीकेशन वाले प्लेस पे लेके गए जाते थे। ठीक है, जो जनरली आज तुम देखोगे कि आज भी ये प्रैक्टिस चली आ रही है। जनरली Electric introduced the first mechanical domestic refrigerator in 1911 in USA, followed by Frigidaire in 1950 and Kelvinator in 1980। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये जो फ्रिज डायरी है इसी के नाम पे उसका जो है वो फ्रिज नाम पड़ा। और कैल्विनेटर जो है वो फर्स्ट थी जो मतलब
ये फॉर्मेशन की थी फ्रिज का, और इस कंपनी का नाम हुआ कैल्विनेटर। चलिए, ग्रोथ इन वेपर compression refrigeration. A rapid growth is attributed to the simultaneously development of simultaneously development of electric motor and compressor, better shaft seal, automatic control, and introduction of CFC in 1950. मतलब क्या हुआ? जस्ट इमेजिन करिए कि आप पहले नाइट में उसको यूज करते थे, मतलब नाइट से यूटिलाइज करते थे, उसको ट्रांसपोर्ट करते थे। उसके बाद आपने एक मशीन का फॉर्मेशन किया। इस मशीन से रिलेटेड आपने इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया, देन कंप्रेसर का यूज किया। उसके बाद आपने शाफ्ट की सीलिंगनेस को परफेक्ट किया। देन अब ऑटोमेटिक कंट्रोल यूनिट्स आ गए हैं। उसके बाद CFC आ गया, और जो नहीं लिखा है उसके बारे में अब आप क्या करते हैं, तो डबल डोर आ गया है आपके पास। और क्या करते हैं, जो रेफ्रिजरेंट यूज करते थे अब वो जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो चुके हैं। और अब क्या हो गया है, तो वो स्टार रेटेड हो गए हैं। मतलब 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है। मतलब क्या हुआ कि ये जो डेवलपमेंट है जो 1755 से स्टार्ट हुआ था वो आज भी इन प्रोग्रेस है। ठीक है, चलिए, डेवलपमेंट ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अब एयर कंडीशनिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो 1891। अब इससे पहले मेरे ख्याल से यहाँ पे एक ब्रेक है कि यहाँ पे रेफ्रिजरेशन कंप्लीट हुआ और यहाँ पे एयर कंडीशनिंग चालू हुआ। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ब्रेक है ना। In 1891, Easterman Kodak installed the first system in New York for the storage of photographic film. ठीक है, मतलब सबसे पहले ये एसी कहाँ यूज होते थे, तो फोटोग्राफिक फिल्म जहाँ का उनके फॉर्मेशन होता है वहाँ पे यूज होता है। फिर 1894 में फर्स्ट डोमेस्टिक सिस्टम इंस्टॉल इन हैम्बर्ग। Then after 1904, Williams Carriage designed a central system using air washer, and 1922 Carriage developed centrifugal compressor. तो आपको कैसा दिखता है, तो मेरे ख्याल से आपने लास्ट टाइम पढ़ रखा है। ये आपका इवोपरेटर है। इवोपरेटर आपके कंप्रेसर से जुड़ा हुआ है। ऑयल एक्सट्रैक्टर है, देन कंडेंसर है, देन रिसीवर, रिसीवर के बाद कोटिंग प्रोसेस और इवोपरेटर में। ठीक है, तो इस चीज को मेरे ख्याल से ज्यादा डीप नहीं जाना है। इसके बाद मतलब आपका जैसे VCR सिस्टम खत्म हुआ उसके बाद VAR सिस्टम है। अब VAR ने क्या कहा, तो 1810 में जॉन्स लेजली डेमोन्स्ट्रेट द बेसिक प्रिंसिपल यूजिंग वाटर एंड SO4। सॉरी, ये अलग अलग है ना। पहला वाटर है, दूसरा हाइड्रोजन है, और तीसरा सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड है। उसके बाद 1860 में आई थिंक सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके, 1860 में फर्डिनेंड कैरी इन्वेंट एक्वा एमोनिया सिस्टम इन फ्रांस। 1878 Winhausen developed water H2SO4 system. H2SO4 is replaced by lithium bromide. Again, 1922, Sodha's student Platon and Munten developed complex absorption system, जो भी आप पढ़ रहे हैं ना। In 1926, Albert Einstein and Leo Szilard patterned a complex system. तो अब देखो, एक स्टेटमेंट दिया था सोलर बेस्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो सोलर बेस्ड रेफ्रिजरेशन एक्चुअली ये वन टाइप है। ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं।
और अगर आप चाहे तो आप भी इसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सोलर बेस्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे, तो उन्होंने क्या किया, पीवी सिस्टम लगाया, पीवी से उन्होंने एनर्जी को इन्वर्टर में डाला, एनर्जी को इन्वर्टर से वो आइडल ग्रिड में डाल सकते, या उसको कनेक्ट करके आप अपने पूरे के पूरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में फिट कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में क्या कर सकते हैं, तो आपके पास जो कॉन्सेंट्रेटर होता है, आप उसका कॉन्सेंट्रेट करके इवोपरेटर में जो जनरेटर का काम करता है उस जगह पे ये एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आता है गैस साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो डॉक्टर जॉन गॉर्ली developed the first air cycle refrigeration system in Florida in 1844. Steam engine driven air cycle system developed by Alexander Clerk in 1862. Bell and Coleman, ये अभी आप पढ़ेंगे ना, carries out several design improvements. Paul Gifford perfect the open type machines in 1875, widely used in aircraft refrigeration. ये देखो, ये एक्चुअली बेल कॉलिमन साइकिल है। इसमें क्या कर रहे हैं वो, तो जो एयर है वो यहाँ से फ्लो होती है। ये एयर को दो तरीके से सिस्टम में लिया जाता है। ठीक है। तो पहला जो है, इस एयर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, मान लो समथिंग 10 डिग्री होता है। अब अगर ये जस्ट इमेजिन करिए कि अगर ये 10 डिग्री को मैं डायरेक्ट, एक्चुअली ये बेल कॉलिमन साइकिल जो है जनरली प्लेन्स वगैरह में यूज होता है ना। ठीक है। तो अब इमेजिन करो कि अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 10 डिग्री है और अगर इसे डायरेक्ट मैं कैबिनेट के अंदर में दूँ, तो क्या होगा, वहाँ पे जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो एक एक करके फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे। मतलब मैं ये नहीं दे सकता। तो इसलिए मुझे इसको क्या करना तब पड़ेगा, तो फैब्रिकेट करना पड़ेगा। तो फैब्रिकेट करना मतलब क्या हुआ, तो इसको मिनिमम 22 से 24 डिग्री का टेम्परेचर ला कर रखना पड़ेगा, जो ह्यूमन कंफर्ट के हिसाब से। अब देखो क्या किया इन्होंने, क्या किया, तो उन्होंने एक गैस टरबाइन लगा के रखी है और एक कंप्रेसर लगा के रखा। तो कंप्रेसर से एयर जो है वो अंदर एंटर करती है, और ये अंदर एंटर करने के बाद कंबस्शन चैम्बर से होते हुए गैस टरबाइन में जाती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और कंप्रेसर से एक सिस्टम बाईपास होता है जो हीट एक्सचेंजर में जाता है। तो देखो जो बाईपास हुआ, अभी भी उसका टेम्परेचर जो है इस कंबशन चैम्बर की वजह से ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा होने के बाद ये क्या करेगा, हीट एक्सचेंजर में जाएगा, जहाँ पे हीट का एक दूसरे से ट्रांसफॉर्मेशन होता। उसके बाद जो ये ठंडी एयर है, ये नीचे कूलिंग फैन के थ्रू एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और जो आपके पास गर्म एयर है, मतलब जो प्लीजेंट वाला है 22 से 24 डिग्री, वो आपके कैबिन के अंदर चली जाएगी विद द हेल्प ऑफ कूलिंग टरबाइन। ठीक है। इस टाइप के सिस्टम को ओपन टाइप एयर साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब बोलोगे सर ओपन टाइप क्यों बोला गया, तो देखो यहाँ पे कहीं भी सिस्टम में कोई रिसाइकलिंग का अरेंजमेंट नहीं है, कोई क्लोज लूप नहीं है, सब कुछ ओपन है। इसलिए इसे हम लोग ओपन टाइप एयर साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलते हैं। अब आता है थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम। थर्मोइलेक्ट्रिक जो है वो सी बैक इफेक्ट पे मतलब होता है। तो सी बैक इफेक्ट क्या होता है, तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा कि एक हॉट है, एक कोल्ड जंक्शन है, अगर ये दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए तो ये जो है वो चार्जेस का मूवमेंट दिखाते हैं। और इसकी बेसिस पे आप ये बोल सकते हैं कि जो आपका जो कोल्ड जंक्शन है वहाँ पे आप और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर 1834 में पेल्टियर इफेक्ट रिपोर्टेड इन फ्रांस आया। देन 1838 में लेंस फिजी a drop of water using Peltier effect with between bismuth and antimony यूज किया। Then Russian scientist Lofty pioneer semiconductor based thermoelectric system बनाई। Then after 1949 में Russian developed the
थर्मो इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज किया। देन लार्ज कैपेसिटी सिस्टम डेवलप्ड इन यूएसए इन 1960s। ठीक है, ये देखो ये सिस्टम कैसे, तो आपने क्या किया, हॉट जंक्शन दिया, कोल्ड जंक्शन दिया, दोनों को कनेक्ट किया। तो कनेक्ट करने के बाद पता चलता है कि इसके ऊपर का जो पार्ट है वहां पे आपका कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और ये नीचे की ओर हीट डिसिपेट करेगा। इसके बाद आता है वोर्टेक्स ट्यूब सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।